Hello everyone, welcome to this 11th part of our 300 important questions for SEBI General Examination. My name is Pratik Taldar and in last video we were discussing about the which official acts as the convener of selection committee. So the correct answer here is Secretary of MCA, which is Ministry of Corporate Affairs. So E is the right choice here. Next question is, if a stock's expected return is 12%, risk-free rate is 5%, and the market return here is 10%. So RF हमको गिवन है यहाँ पे 5%, RM हमको गिवन है यहाँ पे 10%, स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हमको गिवन है 12%, and we need to find out the stocks beta as per the CAPM. CAPM मतलब Capital Asset Pricing Model. So here as per CAPM, expected return is equal to risk-free rate plus your return from the market minus your risk-free rate, which is also called as your premium, multiplied by your beta. So we need to find out the beta here. बाकी सारी information यहाँ पे given है. यहाँ पे 12%, risk-free rate is 5%, RM minus RF will be 5%. So this will be 7 is equal to 5% beta. Beta will be 7 divided by 5, which will be 1.4 here. So A is the correct choice. CAPM model for your examination can be very important. So इससे related आप questions अच्छे से practice करना. DuPont analysis, this is related to your ratio analysis chapter. So this is nothing but an approach to analyze the return on equity. So C is the correct choice here. DuPont analysis is an approach which is used to analyze the return on equity. Next question, if the net profit at the end of the year is 10,000 rupees and the cost of the goods sold is 80,000 with a gross profit of 15,000, what is the net profit margin ratio? So basically your net profit margin ratio is nothing but net profit divided by sales into 100. Acha, net profit to we are already having 10,000. Sales we don't have, but we can find this with the help of relationship, which is cost of the goods sold plus your gross profit is nothing but sales only. So ये जो cost of goods sold, gross profit, sales वाली जो relationship होती है, this is very important for your examination. Past के अंदर काफ़ी सारे competitive exams के अंदर इस relationship को use करने वाले काफ़ी सारे questions examinations के अंदर आए हैं. So 10,000 plus your sales amount आपका यहाँ पे हो जाएगा 80,000 plus 15,000, which is 95,000 into 100. So 10.53% is the correct choice here. Next question is, the risk in terms of degree and nature of investment in which market is greater than the risk of investment done in which market? So basically यहाँ पे risk कहाँ पे ज़्यादा होगी as compared to other market? तो first option capital and money market, second money market and capital market, primary capital, money secondary capital. Basically capital market के अंदर हमेशा आपकी risk ज़्यादा होती है, right? ये लॉन्ग टर्म वाला मार्केट है आपका. मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट जहां पे आपका बॉन्ड हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गए और जनरली डेट सिक्योरिटीज जो होती है वो आपकी मनी मार्केट में यहाँ पे फॉलो हो जाती है. तो ए इज द करेक्ट चॉइस हियर. कैपिटल मार्केट का हमेशा रिस्क ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू मनी मार्केट. विच इज द वेस्टेज कंट्रोलिंग टेक्निक विच मीन्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. तो यहाँ पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जब भी वर्ड आता है तो यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज काइजन. सो काइजन का मतलब ही यहाँ पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज द कंटिन्यूअल एग्जामिनेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस. यहाँ पे काइजन कॉस्टिंग का नाम आते ही आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वाला कीवर्ड याद आ जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर. इफ द सेलिंग प्राइस इज 9 रुपी पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज 5 रुपी. जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट बनाना चालू कर लो माइंड में. सो 4 रुपी हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज 1 लाख. तो 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमको क्वेश्चन में. व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इफ द बजटेड यूनिट्स आर 1 लाख. अच्छा, अभी बजटेड यूनिट्स हमारे 1 लाख है. बजटेड यूनिट क्या होता है? आपका बीपी यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट वाले यूनिट्स, प्लस आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स. तो एक वेरिएबल तो हमारे पास यहाँ पे है, एक और निकाल लेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स निकल जाएंगे. तो बीपी निकाल लेते हैं. बीपी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? फिक्स कॉस्ट 1 लाख डिवाइडेड बाय योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सो 25,000
आपके बीपी यूनिट्स आ गए यहाँ पे। अगर 1 लाख में से 25,000 बीपी यूनिट्स हैं तो रेस्ट बैलेंसिंग फिगर आपके क्या हो जाएंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। सो 75,000 आपके एमओएस यूनिट्स आ रहे हैं। ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ शेयर इज इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अच्छा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होना जरूरी है विदाउट रिसीट ऑफ एनी कंसिडरेशन फ्रॉम शेयर होल्डर। मतलब ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट तो यार बोनस ही मिलता है, राइट। ईसॉप जो होते हैं वो आपके एम्प्लॉइज को मिलते हैं। तो जनरली जो भी एम्प्लॉइज होते हैं जो बढ़िया काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको ऑर्गेनाइजेशन ईसॉप्स देके रिवॉर्ड करती है। राइट शेयर तो यार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को तो मिलते हैं, तो पहली तो बात सही है, पर वो विदाउट कंसिडरेशन नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ पैसे लिए जाते हैं। डिस्काउंट पे बेसिकली राइट शेयर्स आपके इशू किए जाते हैं। बोनस शेयर ऐसी चीज है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दी जाती है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट इज ईच सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर whose instructions subordinate has to obey। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल है। हर सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा सुपीरियर होते हैं तो फिर बहुत ही इश्यूज होने लग जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अगर एक सबऑर्डिनेट है तो उसका सीनियर भी यहाँ पे एक ही होना चाहिए। जैसे ही मल्टीपल सीनियर्स होंगे तो फिर यहाँ पे इश्यूज क्रिएट होने लग जाएंगे। सी इज द करेक्ट चॉइस हियर, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट इज इन मैनेजमेंट, which principle of organization states a formal chain of command where authority flows from top to bottom। अच्छा, टॉप से लेके बॉटम पे जो अथॉरिटी का फ्लो चल रहा है यहाँ पे वो चलता है आपका स्केलर प्रिंसिपल के अंदर। दिस इज अ फॉर्मल चेन ऑफ कमांड और अथॉरिटी विच फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो ये इज द करेक्ट चॉइस हियर। लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। व्हाट डज M3 इंक्लूड? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जॉइन आवर एग्जाम बी एंड प्रिपेयर 50% फास्टर।